Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and today we are going to study adverb clauses. Okay, so we will see a few of the adverb clauses and let us first study adverb. There are 9 types of adverb clauses and out of them we will see how many we can finish today. So the first one is adverb clause of time. We have already finished studying noun clauses and types of noun clauses, different types of noun clauses. We studied 3 types of adjective clauses also, and now let's start adverb clauses. So the first one is adverb clause of time. Adverb clause of time. In adverb clause of time, we have different subordinators. You know that all WH questions are subordinators. That, if, and whether also are subordinators. But here, there are other subordinators as well. So the subordinators that come in adverb clause of time are number 1. See, we can write as soon as is a subordinator. No sooner than is a subordinator is a type. Then after that, when is a subordinator, whenever is a subordinator, till can function as subordinator, until also functions as a subordinator. Till and until में क्या difference होता है? Till is used when we know the final time. This class will go on till 1:30. So till I know that this class will go on till 1:30. But if I don't know the final limit, I will teach you until you learn everything. मैं आपको जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आप सब कुछ सीख ना लो. अब कितने बजे तक पढ़ाना पड़ेगा मुझे इसका कोई गारंटी नहीं. So then we use until. So if you don't know the final time, we use until. And if we know the final time, it is till. Till should not be used for place. Some people say, you walk till that building, I will come there. So till should not be used for place. Till is used only for time in modern English. In old English, till was used for time also. For place also. So till, until, then whenever is done. Okay. While, as long as, so long as, then before, after, all right. So these are the subordinators. There may be one or two more subordinators probably which I might not remember at present, but I think that these are all subordinators for adverb clause of time. ये पूरे subordinators हो गए. शायद अगर by mistake एक आध मेरे ध्यान में नहीं होगा तो एक अलग बात है, otherwise ये पूरे हो गए. Now see example. And we know main clause क्यों कहते हैं? Because it is a complete meaningful sentence. अब यहाँ देखो क्या होगा. Example number 1. So this is example number 1. और हमने जब noun clause का starting में पढ़े थे तो उसके भी पहले हमने इसका example देखे थे. Noun clause नहीं था वो. Clause क्या होता जब ये समझाया था? At that time we saw ये वाला. See, when the cat comes, all the mice run away. And remember, ये adverb clause of time, it is easier than the noun clauses and the adjective clauses. ये तो और सबसे ज़्यादा easiest वालों में से है. क्यों मालूम है? इसमें जैसे हमको when दिख गया time, जैसे ही हमको when दिख गया हम समझ जाते हैं किसकी बात कर रहे हैं. Time. When the cat comes, जब वह बिल्ली आती है, all the mice run away, पूरे चूहे दूर भाग जाते हैं. तो जब वह बिल्ली आती है और जब भी adverb clause of time में होगा जब, तब, कब, अब, ऐसा, तो उससे हम समझ जाएंगे. So here we will write क्या लिखेंगे हम? Subordinate adverb clause of time. Subordinate adverb clause of time when the cat comes.
when the cat comes. And main clause में क्या होगा? All the mice run away. All the mice run away. See, main clause क्या है? All the mice run away. And whenever this main clause is always a simple sentence. ये all the mice run away simple sentence का काम कर रहा है. Main clause यानी single main clause का मतलब simple sentence. In Hindi, a simple sentence is called सरल वाक्य. And in Marathi, a simple sentence is called केवल वाक्य. सरल वाक्य, केवल वाक्य, सिंपल सेंटेंस. ठीक है, मेन क्लॉज को सिंपल सेंटेंस बोलते हैं. मीनिंगफुल सेंटेंस, मेन क्लॉज का मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस, और मीनिंगफुल सिंगल सेंटेंस को ही बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब. चलो, ये हो गया, आपको समझ गया. और व्हेन द कैट कम्स ऑल द माइस रन अवे, इसमें क्या है? सबऑर्डिनेटर भी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है. कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, चाहे सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो, कंडीशन हो, कॉन्ट्रास्ट हो, या सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो, या सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज प्लस मेन क्लॉज मिला के जो लंबा सेंटेंस बनता है, वो पूरे लंबे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, लंबे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं. वो सेंटेंस जिसमें क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो और मेन क्लॉज भी हो, दोनों मिला के उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, मिश्र वाक्य. मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको समझाया था. लेट्स सी नाउ द सेकंड एग्जांपल. एज सून एज वाला देखते हैं, है ना. एज सून एज आई एम इन ट्रबल, as soon as I have any difficulty in English, as soon as I have any difficulty in English, I contact Ansar sir. As soon as I have any difficulty in English, I contact अंसार सर. जैसे ही मुझे इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी होती है, मैं अंसार सर से कांटेक्ट करता हूँ. एज सुन एज का मतलब क्या होता है? व्हेन. एज सुन एज क्या काम कर रहा है? व्हेन का काम कर रहा है. व्हेन आई हैव एनी डिफिकल्टी इन इंग्लिश, आई कांटेक्ट अंसार सर. तो ये एज सुन एज क्या है? सबऑर्डिनेटर है. ठीक है, एज सुन एज क्या है? सबऑर्डिनेटर है. यहाँ व्हेन क्या था? सबऑर्डिनेटर. एग्जाम में सबऑर्डिनेटर पहचानने पे हमको कोई मार्क्स नहीं मिलते. रिमेंबर, वो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उनको बोलते हैं कि पिक आउट द सबऑर्डिनेटर फ्रॉम द सेंटेंस. इस सेंटेंस में से सबऑर्डिनेटर ढूंढकर लिखिए. बट हम हायर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कहा जाता है, वी आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई एंड नेम द क्लॉजेस. मेन क्लॉज अलग और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से टाइप का है वो हमको पहचानना होता है. तो नाउ यू नो व्हाट आई डू, यू नो माय हैबिट. आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन द एंटायर आंसर. अब मैं शॉर्टकट में क्या लिखूंगा? आई कांटेक्ट अंसार सर इज द मेन क्लॉज, है ना. मैंने शॉर्टकट में लिख दिया. आई कांटेक्ट अंसार सर इज मेन क्लॉज. मेन क्लॉज इज ऑलवेज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. तो आप मेन क्लॉज आसानी से पहचान लेते, मीनिंगफुल सेंटेंस. और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या नहीं है कैसे पता चलता? तो ये सबऑर्डिनेटर से पता चल जाता है. एंड और फिर क्या होगा? as soon as I have any difficulty in English, this will be adverb subordinate adverb clause of time. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल से एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम लिखने के बदले मैं सबऑर्डिनेट टाइम ऐसा लिख दूंगा शॉर्टकट में ना. आई वांट टू सेव टाइम एंड हेडेक. सो ये हो गए दो एग्जांपल्स. आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स बट आई विल हैव टू इरेज द प्रीवियस वंस फर्स्ट. मैं मिटाता हूँ पुराने एग्जांपल्स. वीडियो पॉज करके नोट कर लो अपनी ग्रामर कॉपी में. लेट अस नाउ सी द थर्ड एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 3 है ना. ये वन मेन हेडिंग है, अपन तो ऐसा कर देते इसको 3. सो अब वाला व्हेनेवर वाला लिखते हैं. व्हेनेवर आई सी द क्वेश्चन पेपर, whenever I see the question paper, I forget all the answers. Whenever I see the question paper,
आई फॉरगेट ऑल द आंसर्स। ऐसे अपने मन से कुछ भी एग्जांपल्स बना रहा हूं मैं, दे आर ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंग भले कुछ भी बने उसका। तो नाउ सी, अब इसमें सबऑर्डिनेटर कहाँ है? व्हेनेवर, जब मैं देखता हूँ क्वेश्चन पेपर, आई फॉरगेट ऑल द आंसर्स। सो मेन क्लॉज क्या है? आई फॉरगेट ऑल द आंसर्स बिकॉज इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। अच्छा, एक रूल ये है कि जब भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम पहले आता है, मेन क्लॉज बाद में आता है, तो दोनों के बीच में कॉमा लगाना चाहिए। सो व्हेनेवर आई सी द क्वेश्चन पेपर, जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, अच्छा रिमेंबर दिस इज व्हेनेवर आई सी द क्वेश्चन पेपर, ये क्या है? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। और आपको मालूम है सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग कभी कंप्लीट होता है क्या? नहीं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का और एक नाम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। हमने पढ़ा था बहुत पहले, इसी मतलब क्लॉजेस के फर्स्ट लेक्चर में आई टॉट यू कि द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि अपना मीनिंग पूरा करने के लिए मेन क्लॉज उसमें जोड़ना जरूरी है। विदाउट मेन क्लॉज इसका मीनिंग पूरा नहीं होता। तो दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये अधूरा है। जब मैं क्वेश्चन पेपर देखता हूँ, आगे कुछ भी नहीं है, अधूरा रह जाएगा। हाँ, मेन क्लॉज अगर इसमें जोड़ दिए तो उसका मीनिंग पूरा हो जाता है। तो ये दिस इज द मेन क्लॉज। Whenever I see the question paper is adverb, subordinate adverb clause of time. ठीक है, आई एम राइटिंग इन शॉर्टकट एडवर्ब क्लॉज ऑफ, ये नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे लिख रहा सबऑर्डिनेट डैश डैश टाइम। नंबर 4 द नेक्स्ट एग्जांपल। मेरे ख्याल से जब आप समझ जाओगे उसके बाद एग्जांपल्स नहीं दूंगा, है ना, क्योंकि दूसरे भी तो पढ़ाना है। व्हेनेवर वाला हो गया। और बताओ कौन सा एग्जांपल दूं आपको? एज लॉन्ग एज वाला, सो लॉन्ग एज वाला, while वाला, till वाला, until वाला, as long as वाला दे देते। As long as I am here, nobody will make a noise. As long as I am here, nobody will make a noise. जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ as long as का मतलब ये क्या हो रहा है? जब तक। as long as जितने लंबे समय तक मैं यहाँ हूँ, as long as जितनी देर तक मैं यहाँ हूँ, nobody will make a noise. So अब यहाँ this is the subordinator, ये whenever subordinator था यहाँ पर। So main clause कहाँ है? ये है nobody will make a noise. Nobody will make a noise. समझ गए? That is the main clause. Main clause का दूसरा नाम, main clause की जगह और क्या बोल सकते हैं हम? Independent clause. Independent clause. क्या उसका कोई और भी नाम रहता है? Yes, principal clause. स्कूल में बोलते ना, स्कूल के प्रिंसिपल मैम को बोलते ना, हाय प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल क्लॉज, और उसको सुपर ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, बट वो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। एंड एज लॉन्ग एज आई एम हियर इज सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ओके, तो आई होप ये 4 एग्जांपल्स से आप समझ गए होंगे। बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, वो सब के एग्जांपल्स हम बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन जितने एग्जांपल्स ज़्यादा बनाएंगे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। घर की खेती है, मैं कितने भी एग्जांपल्स बनाकर दे सकता हूँ आपको, बट इट विल बिकम टाइम कंज्यूमिंग और आपका दूसरे टाइप से हमारा पढ़ना नहीं होगा। सो विल फिनिश एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हियर। एंड अब हम, अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ जिसमें आपकी गलती हो सकती है। सी, गलती होने के चांसेस, ये स्टॉप एंड थिंक, स्टॉप एंड थिंक, या अगर इंग्लिश में हॉट्स होते थे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होते होंगे, तो यहां पर ध्यान दो। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा जिसमें आपकी गलती हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, when he will return is not known. कब वो आएगा है नहीं मालूम। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या नहीं है? इज इट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और नॉट? तो सबको मालूम है इज नॉट नोन क्या है? इज नॉट नोन इज द मेन क्लॉज।
इज नॉट नोन क्या है? मेन क्लॉज। व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन ही विल रिटर्न, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या नहीं? तो हमारा जवाब है कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम नहीं है। दिस इज नॉट एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। यहाँ पर स्टूडेंट्स चकमा खा जाते, दे आर ट्रिक्ड बाय सच क्वेश्चंस। When we see when, हमको लगता है oh my god when मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जब तब कब। बट रिमेंबर ये है नाउन क्लॉज, दिस इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, दिस इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। अब कोई बोलेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने व्हेन वाला लिखे थे, व्हेन द कैट कम्स ऑल द माइस रन अवे, वो क्यों एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम था, ये क्यों नहीं है? तो अगर आपको जब ऐसा कंफ्यूजन लगे कि नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है या एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है या नाउन क्लॉज है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आस्क क्वेश्चन बाय व्हाट। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया था। आस्क क्वेश्चन बाय व्हाट टू मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को व्हाट से क्वेश्चन पूछो, ठीक है? इफ you get the answer, if you get the answer from the subordinate clause, if you get the answer from the subordinate clause, then it is noun clause, otherwise not, otherwise not। मतलब व्हाट से क्वेश्चन पूछो, व्हाट से क्वेश्चन पूछो मतलब ऐसा पूछो, व्हाट इज नॉट नोन, व्हाट इज नॉट नोन, क्या नहीं मालूम है? तो उसका आंसर क्या है? व्हेन ही विल रिटर्न, ये नहीं मालूम है, कब वो आएगा ये नहीं मालूम है। व्हेन ही विल रिटर्न इज नॉट नोन, कब वो आएगा नहीं मालूम। तो वो इज नॉट नोन क्या है? मेन क्लॉज है, आपको मालूम है, मेन क्लॉज पहचानना आता है हमको। सो उसको क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज नॉट नोन, क्या नहीं मालूम है? तो आंसर आएगा व्हेन ही विल रिटर्न इज नॉट नोन, कब वो आएगा तो नहीं मालूम। तो ये कब नहीं आएगा का आंसर मिल रहा है हमको, व्हाट से क्वेश्चन पूछे मेन क्लॉज को, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको आंसर दे रहा है। तो समझ जाओ ये इसका मतलब ये है कि दिस इज नाउन क्लॉज। अब यही क्वेश्चन आप वो वाला उससे पूछो, व्हेन द कैट कम्स ऑल द माइस रन अवे। देखो मैं बाजू में लिखता हूँ, व्हेन द कैट कम्स all the mice run away, when the cat comes all the mice run away। अब पूछो what all the mice run away, what all the mice run away, क्या सब चूहे भाग जाते हैं? क्या उसका आंसर है when the cat comes? नहीं। तो इसका मतलब when the cat comes ये जो है this is adverb clause of time, ये adverb clause of time है। all the mice run away this is the main clause, ऑल द माइस रन अवे क्या है? मेन क्लॉज है। अभी ऑल द माइस रन अवे मेन क्लॉज है, तो ऑल द माइस रन अवे को व्हाट से क्वेश्चन पूछो। पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, व्हाट ऑल द माइस रन अवे, क्या सब चूहे भाग जाते? और अगर मान लो क्वेश्चन बनता भी है व्हाट ऑल द माइस रन अवे, तो आंसर क्या होगा? व्हाट ऑल द माइस रन अवे, क्या सब चूहे भाग जाते? तो बोलेंगे जब बिल्ली आती, तो बोलेंगे क्या सब चूहे भाग जाते जब बिल्ली आ जाए। सो इट इज़ इलॉजिकल, अंडरस्टूड? सो यू विल बी एबल टू मेक अ क्वेश्चन यूजिंग मेन क्लॉज बाय व्हाट only in case of noun clause। so what is not known, when he will return is not known। एक और एग्जांपल बोलूँ, लिखता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट होगा। why he killed his mother is a secret, why he killed his mother is a secret। तो पूछना what is a secret, क्या रहस्य है? बोले why he killed his mother, तो ये नाउन क्लॉज हुआ, समझ रहे? where she has gone is unknown, where she has gone is unknown। what is unknown, क्या नहीं मालूम? where she has gone, कहाँ वो गई ये नहीं मालूम, तो ये नाउन क्लॉज हुआ, ठीक है? तो व्हाट से क्वेश्चन पूछो मेन क्लॉज को, अगर आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज देता है तो वो नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज का ही सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज ही व्हाट का आंसर देता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम व्हाट का आंसर नहीं देता। चलो आई होप आपको समझ गया। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब क्लॉज इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ place, adverb clause of place। now subordinators कौन से हो सकते हैं? we can expect, we can guess
the subordinators here. What is a subordinator? It is a word or a group of words which joins the main clause and the subordinate clause. देखो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेटर क्या रहेगा? वेयर। अभी वेयर देखकर ही आप समझ जाएंगे कि प्लेस का एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है ये, है ना। वेयर एवर, जहां जहां, मत पूछो कहां कहां, है ना। सो वेयर, वेयर एवर, और क्या? विदर, WHITHER, विदर। विदर इज archaic English, archaic word for where। पुराने जमाने के इंग्लिश में, शेक्सपियरियन इंग्लिश में वेयर को ही विदर बोलते थे और हियर को हिदर बोलते थे। हियर वॉज हिदर, हियर वॉज कॉल्ड हिदर। THERE, देयर, वहां, देयर वॉज कॉल्ड हिदर। हिदर, दिदर, इधर, उधर, किधर किधर, है ना। लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल्स। नंबर 1, इसमें देखो सबऑर्डिनेटर्स बहुत कम है। सो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, where there is smoke, there is fire। where there is smoke, there is fire। I could have given that famous example also। मैं आपको फेमस एग्जांपल भी दे सकता था। where there is a will, there is a way। where there is a will, there is a way। बट मैंने कुछ नया चुन लिया। where there is smoke, there is fire। सो अब इसमें मीनिंगफुल बताओ सेंटेंस क्या है? देयर इज फायर, वहां है आग, वहां आग है, दिस इज मेन क्लॉज। एंड ये क्या है? वेयर देयर इज स्मोक इज एडवर्ब, हाँ हम सबऑर्डिनेट भी लिखते, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। वेयर इज द सबऑर्डिनेटर? वेयर सबऑर्डिनेटर है, वो तो ऊपर ही लिखा है लिस्ट में। कितना इजी रहता है ग्रामर, है ना। The grammar, English grammar is so easy। Number two, wherever वाला लिखेंगे, है ना। Wherever you go, the dog will follow you, death will follow you। Let's be philosophic। Wherever you go, death will follow you। death will follow you। wherever you go, death will follow you। death का D क्यों कैपिटल लिखा मैंने? why have I capitalized the D in the death? because I have personified death। I have given death the human quality of following, its personification। जान लो, वो सब चीजों में टेंशन मत लो। मेन क्लॉज बताओ मीनिंगफुल क्या है? अगर आप किसी को जाके इतना बोलते हो wherever you go, जहां जहां तुम जाओगे, क्या बात पूरी हुई? नहीं। हाँ, किसी को सिर्फ इतना बोल दिया तो death will follow you, मौत तुम्हारा पीछा करेगी, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। और जो मीनिंगफुल सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं मेन क्लॉज। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग पूरा होता है, उसको कहते हैं सेंटेंस। अगर मीनिंग पूरा नहीं होगा तो फ्रेज हो सकता है। सो wherever you go is adverb clause of place। adverb clause of place because it is talking about place। this is subordinate, हमारी आदत है हम सबऑर्डिनेट लगाते हैं। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। सबऑर्डिनेटर कौन सा है? तो वेयर। वैसे सबऑर्डिनेटर कौन सा, इस पर ज्यादा लोग नहीं ले रहे, सबऑर्डिनेटर से ही हम समझ जाते हैं। So I hope आपको समझ गया होगा, है ना। 2 examples are more than sufficient to explain the case to। इसको है ना अपन उसको A B C D देना चाहिए था। हमने 1 2 3 4 इधर भी 1 2 इधर भी 1 2 आ रहा है। Alright, तो वो हेडिंग कैपिटल लेटर्स में लिखा है। Now we'll see adverb clause number 3। We will now see, note down these। अब हम देखेंगे adverb clause of condition। adverb clause of condition। Number 3, adverb clause of condition। शन से पहले जो भी आप इसको जोर से पढ़ते हैं सिलेबस को,
ना, operation, examination, institution, organization, condition. Subordinate. What is the meaning of the word condition? Terms. Condition यानी terms and conditions, है ना? कुछ खरीदो तो उस पर लिखते हैं ना, T&C apply, terms and conditions apply. So condition यानी शर्त. See, I am using a Hindi word also. Some people may not like going, sir, you are teaching English grammar and why are you why are you explaining things in Hindi and why are you writing Hindi words on the board? Hindi is our mother tongue. Remember, Hindi is our national language. For most of us, Hindi is our mother tongue. English is our other tongue. So I am using Hindi words only to explain the case in a better, to explain things in a better manner. Okay, and I am using Hindi because some of my students ask me to use English, Hindi plus English. It becomes easier for them to understand the concept then. Otherwise, I can speak the British English, I can speak the American English also. I have taught you in my lectures the differences between the British English and the American English. Let's proceed. Adverb clause of condition. So here the subordinators are if, whether, unless, on condition that. On condition that. These are the subordinators used mostly in adverb clause of condition. शर्त. कभी कभी पेरेंट्स मराठी वर्ड यूज करू, मराठीत अट म्हणतात, अट. पेरेंट्स काहीतरी अट ठेवतात. जर तुला 100 पैकी 100 मिळाले इंग्लिशमध्ये तर तुला मोबाईल फोन मिळेल. पेरेंट्स कधी कधी अशी कंडिशन ठेवतात. सर त्याला म्हणतात ॲडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडिशन. समजलं तुम्हाला? आता बघा, कभी कभी हमारे मम्मी पापा हमारे लिए शर्त रख देते कि बेटा अगर 100 आउट ऑफ 100 मिले, कि आपको इंग्लिश वैसे लैंग्वेजेस में इतने मिलते नहीं है, अगर मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिले साइंस में, मैथ्स में, तो आपको हम मोबाइल फोन दिला देंगे. पेरेंट्स बोलते हैं हम आपको 2 व्हीलर दिला देंगे. तो दैट्स व्हाई वो कंडीशन होती है, ऐसा होगा तो ही वैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, इफ यू स्कोर 100 on 100 in science, I will salute you. कुछ भी लिखते हो अपने मन में जो आया. So if you score 100 on 100 in science, I will salute you. अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लेते हो साइंस पे तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा. सो अब इसमें मेन क्लॉज बताओ. अगर आप किसी को जाके सिर्फ इतना बोल दो, इफ यू स्कोर 100 on 100 इन साइंस, आगे को बोलो ही मत कुछ, तो क्या मीनिंग बनेगा पूरा? नहीं. हाँ, अगर आपने किसी को सिर्फ इतना बोल दिया, आई विल सैल्यूट यू, तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है. दैट्स व्हाई इट इज द मेन क्लॉज. दिस इज द मेन क्लॉज. और सबऑर्डिनेटर कहाँ है? इफ इज द सबऑर्डिनेटर. इफ क्या है? सबऑर्डिनेटर है. यदि, हिंदी में हम यदि बोलते हैं, यदि अगर ऐसा हो गया, तो अगर लोकल इंग्लिश में अगर, लोकल हिंदी में अगर बोलते हैं अगर ऐसा हो गया. इफ यू स्कोर 100 on 100, दिस इज द कंडीशन. ये शर्त है ना. सैल्यूट के लिए क्या शर्त है? कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मिले तो ही ऐसा होगा. सो दिस इज सबऑर्डिनेट adverb clause of condition. This is subordinate adverb clause of condition. ये कंडीशन वाला क्लॉज है, ठीक है. एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन. शर्त रखे है कि अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे तो ही सैल्यूट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, फिर तो आपकी खाल खड़ी कर देंगे. हाँ. तो उसके बाद अनदर एग्जांपल, नंबर 2. Now I am giving रोमन नंबर्स. अब इफ वाला हो गया, वेदर वाला लिखते हैं ना, या अनलेस वाला लिखते हैं. अनलेस, ये अनलेस का मतलब क्या होता है? अनलेस का मतलब होता है इफ डॉट 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 नॉट, यदि नहीं. इफ नॉट, अनलेस का मतलब यदि नहीं. Unless she asks my pardon या my permission,
unless she asks my permission she cannot go anywhere. अब unless का मतलब क्या है? if not, यदि नहीं वो पूछती है मेरी परमिशन, यदि नहीं लेती है वो मुझसे परमिशन, she cannot go anywhere, वो कहीं नहीं जा सकती है ना. इसी का मतलब क्या है? unless she asks my permission का मतलब क्या है? if she does not ask my permission. मैं उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दे रहा. unless she asks my permission का मतलब क्या है? unless का मतलब क्या है? unless का मतलब है if not. unless she asks my permission मतलब if she does not ask my permission she cannot go anywhere. तो अब इसमें ये देखो what is this, ये क्या हो गया पूरा बॉक्स. this box has become adverb subordinate. ये देखो if भी आ गया, ठीक है, यानी unless का if not ही नहीं होता. subordinate adverb clause of condition. And where is the main clause? So many pens. This is the main clause. Main clause is always a meaningful sentence. Main clause को main clause इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा meaningful sentence होता है. Unless she asks my permission, she cannot go anywhere. ठीक है, unless वाला एग्जाम्पल. अब on condition that और weather वाला मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, फिर उसके बाद फोर्थ टाइप पढ़ा दूंगा, देन हम रुक जाएंगे. नंबर 3. We'll go to the picnic. We'll go for the picnic. We'll go for a picnic whether she comes or not. Whether he comes or not. Whether he comes or not, we will go for a picnic. उल्टा कर देते हैं ना. Whether he comes or not. We'll go for the picnic. Whether he comes or not, we will go for the picnic. I will teach you on condition that these are the two examples are for homework for you, suppose. And now we'll see the fourth type, adverb clause of contrast. कोई डिफिकल्टी तो नहीं, एक दो और होमवर्क दे देता, हो सकता नहीं समझा होगा तो, है ना. 1 minute. I will give you a few more examples. पता चला कोई बोलेगा सर नहीं समझा, 2 एग्जाम्पल में हमको समझते हैं, हमारा दिमाग ही नहीं खुलता. ये देखो एग्जाम्पल 5, 6. If you work hard, you will succeed. Number 7. Unless वाला. Unless they say sorry to me, I will keep on troubling them. जब तक वो मुझे सॉरी नहीं कह देते मैं उनको परेशान करता रहूँगा. एग्जाम्पल है, वैसे मुझे आदत नहीं किसी को तंग करने की. नंबर 3. अनलेस वाला समझ गया. अनलेस का मीनिंग क्या होता है? इफ का एक और लिख लेते, इफ आगे भी लगा देते अपन, हो सकता है. नाउ अभी की जो क्लास है ये यूट्यूब क्लास है कोविड-19 के ऑनर, तो हो सकता है कोई मुझे पूछेगा सर क्या इफ बाद में आ सकता है? हाँ आ सकता है, बिल्कुल.
your dad will punish you if you cheat him. Your dad will punish you if you cheat him. Your dad will punish you if you cheat him. अब एक बात याद रखना, आप बोलेंगे सर if subordinator, मैं बोलूँगा हाँ if subordinator है, आप बोलेंगे सर subordinator के पहले you आ गया, you pronoun है, और सर आपने एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज की टाइप 2 में बोले थे कि सबऑर्डिनेटर के पहले अगर प्रोनाउन आ गया तो आगे का एडजेक्टिव क्लॉज रहता, बट हमने ये भी तो देखना है कि क्या वो कोई क्वालिटी बता रहा है ना। अगर हम बोलेंगे इट इज वी हु आर लूटेड बाय द डॉक्टर्स, वो हम ही लोग हैं जो लूटे जाते हैं, तो हमारी विशेषता क्या है, हम लूटे जाते पैसे से, है ना। लेकिन यहाँ क्या है, योर डैड विल पनिश यू, आपके डैड आपको पनिश करेंगे, और इफ यू चीट हिम, अगर आप उनसे धोखाबाजी करोगे तो ये कोई क्वालिटी थोड़ी बता रहा है, तो दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी एडजेक्टिव क्लॉज। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, आंसर बता दूं क्या आप करेंगे, योर डैड विल पनिश यू, ये है मेन क्लॉज ना। आप बोलेंगे सर मेन क्लॉज पहले आ सकता है या नहीं आ सकता, तो बिल्कुल आ सकता है जी, कभी भी आ सकता है जी, क्यों नहीं आएगा। एंड दिस इज एडवर्ब सबऑर्डिनेट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। चाहे तो वी कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स, बट टाइम डज नॉट अलाउ अस टू डू दैट। ये आई होप कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और एग्जाम में इफ और अनलेस वाले ही ज़्यादा आते हैं, और ऑन कंडीशन दैट तो आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में आया नहीं, ना ही 9th में 10th में कहीं स्कूल वालों में आज तक देखा नहीं। आई हैव टॉट टू स्टूडेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट स्कूल्स, इट हैज नेवर बीन आस्क्ड ऑन कंडीशन दैट। लेकिन रेन एंड मार्टिन में ये दिया है कि इट आल्सो इज अ सबऑर्डिनेटर, बट उसका कभी पूछते ही नहीं। लेट अस प्रोसीड टू स्टडी द फोर्थ टाइप नाउ। We will study the fourth type and then we will call it a day. We will stop. So adverb clause of contrast. Adverb clause of contrast, और कभी कभी कोई लोग बोलते हैं adverb clause of concession. Concession भी बोल देते हैं. See, adverb clause of contrast. इसमें subordinator क्या है? Subordinator is also called the subordinating conjunction. Subordinating conjunction. Subordinating conjunction. Okay, there are two types of conjunctions: coordinating conjunctions and subordinating conjunctions. We will see coordinating conjunctions when we will see coordinating conjunctions later on. ठीक है, they are used to join two main clauses to make a compound sentence. So subordinator और subordinating conjunction. Adverb clause of contrast में कौन सा subordinator आता है, तो whereas आता है, whereas. ठीक है, adverb clause of contrast. For example, हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, आई हैव स्टडीड इंग्लिश, और वी कैन से द ओल्ड सिस्टम वाज फेयरली कॉम्प्लिकेटेड whereas the new one is very simple. The old syllabus was fairly complicated, whereas the new one is, इसको fairly हटा देते हैं, ऐसा है, the old syllabus was very complicated, whereas the new one is fairly simple. The old syllabus was very complicated, whereas the new one is fairly simple. Understood? अब इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस क्या है, मेन क्लॉज क्या है, तो the old syllabus was very complicated. This is the main clause. And whereas क्या है, subordinator है ना. So whereas the new one is fairly simple, this is adverb clause of contrast. Adverb clause of contrast. This is adverb clause of contrast. ठीक है, अब
ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है इसे हम ऐसा भी दे सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। और डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब देखो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि इन डिफरेंट बुक्स बहुत से टीचर्स, बहुत से बुक्स ये दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट की ऑपोजिट बातें बता रहे हैं, लेकिन बहुत से बुक्स में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन मेनी बुक्स एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन both are considered to be one and the same thing। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन एक ही चीज होती है, ऐसा बहुत सारी बुक्स में लिखा है। इवन आई थिंक रेन एंड मार्टिन में भी ये लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन बोथ मीन द सेम, दोनों का एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ मैं इसलिए इसको नंबर 4 नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन। और इसमें सबऑर्डिनेटर्स कौन से आते हैं, इसमें सबऑर्डिनेटर्स कौन से आते हैं, तो THOUGH दो, ऑल्दो, इवन दो एंड इवन इफ। दो का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट। दो ही डिड नॉट राइट अ गुड पेपर ही स्कोर्ड गुड मार्क्स, ऑल्दो ही डिड नॉट राइट एनीथिंग स्टिल ही गॉट, ऑल्दो ही डिड नॉट राइट though he did not write a good paper he scored good marks, although he did not write the paper he scored good marks, even though he did not go to the exam hall he scored good marks। और भी बड़ा contrast, even if he does not exist he has scored the highest marks। तो दो यानी छोटा ऑपोजिशन, छोटा कॉन्ट्रास्ट, ऑल्दो यानी और बड़ा कॉन्ट्रास्ट, इवन दो यानी उससे भी बड़ा ऑपोजिट बात है, इवन इफ यानी सबसे बड़ी ऑपोजिट बात। हालांकि उसने अच्छा पेपर नहीं लिखा फिर भी मार्क्स अच्छे मिले, हालांकि उसने पेपर ही नहीं लिखा फिर भी अच्छे मार्क्स मिले, हालांकि वो एग्जाम हॉल तक ही नहीं गया फिर भी अच्छे मार्क्स मिले, हालांकि वो है ही नहीं इस दुनिया में फिर भी उसको अच्छे मार्क्स मिले। तो ऑपोजिट बातें हुई और बड़े लेवल की ऑपोजिट बातें हुई, तो ये इसका डिफरेंस है। कोई लोगों को ऑल्दो और दो का डिफरेंस नहीं मालूम होता, तो बड़ा कॉन्ट्रास्ट ऑल्दो बताता है, छोटा कॉन्ट्रास्ट दो बताता है। अब इसी को एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन भी कहते हैं। एंड इन मेनी बुक्स बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स जो है रेन एंड मार्टिन, जेम्स पिचेट एंड बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन को ही एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो आप भी एग्जाम में क्या करना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन को एक ही चीज समझना, क्योंकि देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट ही तो बता रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये कंसेशन है लेकिन कॉन्ट्रास्ट भी तो है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि though he is poor he is honest, though he is poor he is honest, ये तो कॉन्ट्रास्ट है ना एक टाइप का। हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार, हालांकि गरीब होने पर ईमानदारी रहना मुश्किल होता है, चोरी चकेरी करना पड़ता है, ईमानदारी रखना मुश्किल होता है। सो though he is poor he is honest, तो इसलिए अब मैं क्या करता यहाँ पर है ना, इसके और मैं डाल देता, कॉन्ट्रास्ट भी डाल देता मैं यहाँ पे, है ना। So adverb clause of concession and contrast लगभग एक ही चीज है। Though he is poor, he is honest. So he is honest is the main clause. कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा, ये ऊपर का हटा दूं क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट का हेडिंग हटा दूं, इसको नंबर 3 दे दूं। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंसेशन एक ही चीज है, समझ लो, ठीक है। हालांकि मैं उसको अलग लिखवा के दे रहा, बट उसको एक ही चीज मान के चलो, then only things will be simpler for you. So though he is poor, this is adverb clause of contrast, adverb clause of contrast or concession। फिर उसके बाद नंबर 2, though Shiny was sick, she participated in the race। Though Shiny was sick, she participated in the race। She participated in the race is main clause, and though Shiny was sick is adverb clause of contrast, subordinate, adverb clause of contrast
or concession. Adverb clause of contrast or concession. फिर उसके बाद और क्या लिखा हूं? इवन दो लिख देते हैं. Even though he tried very hard, even though he tried very hard, he could not pass the exam. Even though he tried very hard, हालांकि उसने बहुत कोशिश किया, he could not pass the exam. हालांकि उसने बहुत कोशिश किया लेकिन वो एग्जाम में पास नहीं हो सका. So he could not pass the exam is the main clause. देखो बहुत समय से लास्ट लेक्चर में भी I'm using green pen. Okay, I'm using green pen, green ink to show main clause, and red ink shows. I'm using red ink to show subordinate clause. So again, this is subordinate adverb clause of contrast or concession. Shall I give you homework? How much time is left? Oh, it's already 46 minutes. We should stop here, I think. Or do I'll give you only one example as a homework. Sorry. I'll give you one example as a homework. And this is your homework, number 4. Though I got up early in the morning, I missed my school bus. Though I got up early in the morning, I missed my school bus. एक आध और एग्जाम्पल दे देता हूँ अगर आपको कोई एतराज ना हो तो. इवन इफ वाला दे देते हैं ना. Even if you try your level best, you cannot climb up to the sky. Even if you try your level best, you cannot climb up to the sky. ठीक है? Suppose these are your examples for homework. We'll stop here. Have a nice day. Enjoy your studies, and wherever you find any difficulty, do contact me, Ansar sir. You have my WhatsApp number. Okay, bye bye. Have a nice day.